Once again, welcome back class 12 students. This is second part of the video, and in this part we will talk about second topic, that is deficient demand, deflationary gap, the meaning of deficient demand, the reason and their impact. Okay, so before going to further proceed in this video, I want to tell you that this video is actually somewhere opposite of the excess demand. Now we can see the meaning of deficit demand. It means it is the situation when aggregate demand is less than aggregate supply. Now you can see the formula I have highlighted. AD is less than AS, whereas AS is greater than at equilibrium level. You have to mention equilibrium level means the level of full employment level, and full employment level is about output income of the economy. So we will now define the deficit demand. It is very simple. It refers to the situation when AD is less than AS. Corresponding, you have to write this. This is the important line. To full employment level of output in the economy. Okay, understood? And try to make the flow chart always. Okay, every time you have to make something like this. Now you can see this is the diagram as we have made for inflationary gap. Now we are making for the deflationary gap. Inflation rises above in the graph and deflation is going down in the graph. As you can see, it is shifted from E to E-1 at the lower part and AD to AD1. Now see, this is a clear picture of deflationary gap from E to E1. The gap is showing deflationary gap between E to B. Okay, remember from E to B. But at point E dash, it is showing underemployment equilibrium. That means the demand which is going backward. Okay. So I hope this is also clear to you. Mention point wise in the explanation of the diagram if it is asked. Okay, now I will tell you the meaning of deflationary gap. When actual aggregate demand falls, AD fall हो गई क्योंकि हमने AD dash को नीचे बनाया. Short of aggregate supply, किससे short हुई थी? AS aggregate supply से. At the full employment, then the gap is a deflationary gap. Now I will show you how I have written. This is about deflationary when it is the gap by which actual AD falls short of AD required to establish full employment equilibrium. You have to mention this. क्या हुआ, किससे short हुआ? जितना required था उससे ही कम पड़ गया हमारा actual. ठीक है, रिक्वायरमेंट ही जब कम हुई तो एक्चुअल कैसे हो पाएगी? देन इट इज द गैप बाय विच एक्चुअल एडी फॉल्स शॉर्ट ऑफ एडी रिक्वायर्ड. और ये लाइन लिखनी ज़रूरी है, टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अब हम उस डायग्राम को फिर वैसे ही मेंशन करेंगे जैसे हमने इन्फ्लेशनरी गैप को मेंशन किया था. इन द अबव डायग्राम, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट आर मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस, एडी इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस. एडी एंड एएस कर्व को इंटरसेक्ट करके दिखाया था. दैट पॉइंट इज कॉल्ड ई, due to which indicates the full employment equilibrium. Due to increase in investment expenditure, AD falls. वहाँ पे इन्फ्लेशन में हम क्या करते हैं? इंक्रीज लिखते हैं. बट डिफ्लेशन में हम क्या लिखेंगे? ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, AD falls from AD to AD-1. It denotes the situation of deficit demand or the gap between them is called deflationary gap. दोनों को साथ में रखोगे ना आप, खुद से ही लिख पाओगे. ठीक है. Now moving on to reasons for deficient demand. Number 1 is decrease in propensity to consume. वहाँ पे हम क्या करते थे? मम्मा 100 रुपीज़ देती थी और हम खरीद के लाते थे 120 का. बट यहाँ जो अभी का केस चल रहा है, वी ऑल आर ट्राइंग टू सेव. सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? कम करेंगे. तो कंजप्शन हमने क्या करी? इनकम सेम थी 20,000 इन 2010 एंड 2011, बट कंजप्शन रिड्यूस हो गया बाय 10,000. ओके. So now we can define it. Decrease in consumption expenditure due to fall in the propensity to consume leads to deficient demand in an economy.
कंजप्शन रिड्यूस होते ही हमारी डेफिशिएंट डिमांड हो गई, बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग लेस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. नाउ सेकेंड इज इंक्रीज इन टैक्सेस. इन्फ्लेशन में क्या था, डिक्रीज, रिडक्शन हो रहा था टैक्सेस में, मगर यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज. तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, इनकम तो सेम कमा रहे हो मगर टैक्स रेट अब आप सारा दे रहे हो. पहले आप 10% देते थे, अब आप 30% दे रहे हो. तो 10,000 का 10% 1,000 हुआ और 30% 3,000 हुआ. तो पहले आपकी जो इनकम आपके पास आ रही थी वो 9,000 थी, मगर अब कटने के बाद आपकी टैक्सेस सिर्फ 7,000 आ रही है. तो जब इनकम ही कम आएगी तो आप डिमांड भी कम करोगे. नाउ यू कैन राइट AD में ऑल्सो falls due to imposition of higher taxes. It leads to decrease in disposable income, and as a result the economy suffers from deficient demand. मैं आपको disposable income के बारे में बता दूं, उसमें भी आया था disposable income inflationary gap में जब हम पढ़ रहे थे. बट क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट CBSE से हट गया था, सो हमने कभी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को नहीं पढ़ा. डिस्पोजेबल इनकम एक्चुअली वो इनकम होती है जिसमें हमारे सब टैक्सेस कटने के बाद हमको मिलता है. जितनी भी हमें बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, वो सब कटने के बाद हमको जो इनकम मिलती है उसे हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं. ठीक है. सो आई होप नाउ यू आर एबल टू राइट दैट एज अ रिजल्ट द इकोनॉमी सफर्स फ्रॉम डेफिशिएंट डिमांड. नाउ The third point is decrease in government expenditure. अच्छा, इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था, इंक्रीज, गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर कर रही थी, बट यहाँ पे क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है एक्सपेंडिचर को. अब अगर गवर्नमेंट ही एक्सपेंडिचर्स कम कर देगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा. पीपल वर नॉट एबल टू गेट द एम्प्लॉयमेंट फुल्ली एट द फुल इक्विलिब्रियम लेवल, जिसकी वजह से डिमांड्स कम हो जाएंगी. जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मेट्रो को बंद कर दिया गया, तब तक लोगों के पास क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं था. ठीक है. सो व्हेन गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स demand for goods and services due to fall in public expenditure, now they are reduced and it leads to deficient demand. अब हर उसमें कोशिश करना कि आप ऐसे ही बना के आओ फ्लो चार्ट्स. फोर्थ वन, fall in investment expenditure. अब क्या कर रहे हो आप, ना तो आप FD कर रहे हो, ना म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हो, ना और कोई शेयर्स में लगा रहे हो. आप क्या कर रहे हो, अपनी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस, एकदम फॉल कर दे रहे हो. तो उससे क्या होगा, क्या आपको मल्टीप्लाई में आपको इनकम मिलेगी, नहीं मिल पाएगी. सो इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट और फॉल इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑन इन्वेस्टमेंट थी वो भी रिड्यूस हो जाती है. जैसे कि आप देख सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, बाद में 2011 में वो बेशक 10% हो गया, मगर उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी MEI भी गिर गई, 15 से 10% हो गई, यानी अब आपको उतना नहीं मिल पा रहा, विच लीड्स टू डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इट रिड्यूसेस द AD एंड गिव राइज टू डेफिशिएंट डिमांड. ठीक है, सब कुछ सेम है बच्चा, वेरी सिंपल, जस्ट मैच इट अप. फिफ्थ पॉइंट, राइज इन इम्पोर्ट्स. अब उस समय क्या हो रहा था, फॉल हो रहा था इम्पोर्ट्स में, जब हम चाइना से लेना हमने बंद कर दिया था. नाउ राइज इन इम्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, जब हम इंटरनेशनल प्राइसेस जो है कंपैरेटिवली हमारी डोमेस्टिक मार्केट से कम में हमें कुछ मिल जाता है सामान. जैसे कि आप देखते हो कि कुछ कपड़े जो होते हैं वहाँ से रिजेक्टेड पीस होने के बाद में बेशक वो ब्रांडेड हों, बट वो हमको कम में मिल जाते हैं हमारी डोमेस्टिक प्राइस से भी. सो व्हेन इंटरनेशनल प्राइसेस आर कंपेरेटिवली लेस देन द डोमेस्टिक प्राइस, देन इट मे लीड्स टू राइज इन इम्पोर्ट्स, इम्प्लाइंग अ कट इन द AD. इसमें भी थोड़ा सा कट होता है एक्चुअल डिमांड में. सिक्स्थ पॉइंट, फॉल इन एक्सपोर्ट्स. अब एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारे बिल्कुल गिरने लग गए. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा पाकिस्तान है. वहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हो गई हैं, बहुत कॉस्टली हो गई हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में फॉल ड्यू टू कंपैरेटिवली हायर प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट के ही प्राइस बहुत है. या दूसरा रीज़न हो सकता है हमारा कि एक्सचेंज रेट जो है हमारी डोमेस्टिक करेंसी वो इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से भी डेफिशिएंट डिमांड हो जाती है. अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. इसमें क्या है ना, उधर तो सिर्फ जनरल प्राइस लेवल पे असर पड़ रहा था, मगर यहाँ पे तीनों पॉइंट्स पे असर पड़ेगा. इवन इफेक्ट ऑन आउटपुट. कैसे? ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड. जब डिमांड इतनी नहीं थी तो हमारी इन्वेंट्री का जो स्टॉक था, जो
पड़ा हुआ था पहले से रॉ मटेरियल, वो भी बढ़ता जा रहा था. सो इट विल फोर्स द फर्म टू प्लान फॉर लेसर प्रोडक्शन. तो फिर थोड़ी ना मैं कोई और प्रोडक्शन करूँगी और ज़्यादा बनाऊँगी फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड. एज अ रिजल्ट प्लान्ड आउटपुट विल फॉल, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लान आउटपुट जो था मेरा, जितना मैंने प्लानिंग की थी वो सब गिर जाएगा. इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे कैसे फ़र्क पड़ा. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मेंशन है. इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है, जिसमें हम काम करना चाहते हैं मगर हमें नहीं मिल रहा होता. सो डेफिशिएंट डिमांड कॉजेज involuntary unemployment in the economy due to fall in the planned output. Last is effect on general price level. इस पे भी असर पड़ता है. Deficient demand causes the general price level to fall due to lack of demand for goods and services in the economy. क्योंकि कोई कुछ डिमांड कर ही नहीं रहा, तो मैं क्या कोशिश करूँगी, जितना सामान भी पड़ा है उसके प्राइसेस कम कर दूँ और वो सब सामान बिक जाए, एटलीस्ट मेरा स्टॉक क्लियरेंस हो. तो हम देखते हैं ना कि सेल लगा देते हैं, 50% सेल और मोर देन दैट सेल. ये होगी आपकी आज की वीडियो. आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड. Thank you so much everyone. That's it for today.